So, guys, in our previous class, we saw the third step fully for realization of realizable assets. Now, step number 4. This is for, guys, please stop talking. For payment or discharge of external liabilities. This is our next step, step number 4. In this, the first step is for payment of external liabilities. So for payment of external liabilities, what do we do? We debit realization account and credit cash or bank account. So the external liabilities which we are paying actually at the time of dissolution, for that we pass this entry. In ordinary course, when we pay any external liability, what do? We debit the liability account, that is creditors account or bank loan account or outstanding salaries account, and credit cash or bank account. But in case of dissolution, since all the external liabilities have already become zero, and that is why we do not debit them, but we debit realization account and credit cash or bank account. Have you understood what I said, guys, or not? Yes or no? What does Manveer, Shubh, Sarthak, Vishika? For discharge of an external liability by giving away an asset. guys, बाद में लिखिएगा जो बता रहा हूँ, पहले इसको देखते जाइए. अंडरस्टैंड दिस. When we discharge an external liability, डिस्चार्ज होना मतलब मुक्त होना एक्सटर्नल लाइबिलिटी से. तो जब हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी से मुक्त होते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, कैसे? नॉट बाय पेइंग बट बाय गिविंग अवे एन एसेट. बदले में हमने एक एसेट दे दी. क्रेडिटर को बोला स्टॉक ले लो आप. क्रेडिटर रेडी हो गया उसके लिए. इस पॉइंट को हम पहले भी देख चुके हैं गाइस यहाँ पे. और एसेट्स गिवन अगेंस्ट क्लेम ऑफ एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी, राइट? ये और वो सेम पॉइंट ही है. यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? हमने एसेट्स दिए अगेंस्ट क्लेम ऑफ एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी. Here we are discharging an external liability by giving away an asset. So they both are same. So here also we do not pass any entry. Means if we have given any asset to an external liability against his claim, then we do not pass any journal entry for it at all. Am I clear? For an external liability undertaken by a partner. अगर किसी पार्टनर ने कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटी ले ली है गाइस, वो बोल रहा है कि इस लाइबिलिटी का पेमेंट मैं कर दूंगा, फर्म ना करे, राइट? इसका मतलब ये नहीं कि फर्म फ्री हो गई. इसका मतलब कि फर्म को वो लाइबिलिटी के बदले में पार्टनर को पे करना है. पार्टनर विल पे द लाइबिलिटी एंड फर्म विल पे टू द पार्टनर. एम आई क्लियर? ये समझ में आ रहा है आप लोगों को गाइस? तो इसके लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और उस पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा देंगे, मतलब क्रेडिट करेंगे. And this entry we pass with the agreed amount at which the liability is undertaken by a partner. I hope guys you all have understood the 3 points of payment and discharge of external liability. इसके साथ हमारे external liability वाला किस्सा पूरा खत्म हो गया. या तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी का हम पेमेंट करेंगे तो उसके लिए एंट्री करेंगे, या फिर एक्सटर्नल लाइबिलिटी को एसेट देंगे तो उसके लिए कोई एंट्री नहीं करेंगे, या फिर किसी एक्सटर्नल लाइबिलिटी को पार्टनर अंडरटेक कर रहा है, बोल रहा है मैं इसका पेमेंट कर दूंगा, तो उसके लिए हम ये एंट्री करेंगे. क्लियर है गाइस?
इन दोनों एंट्रीज में फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ दोनों में रिलेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, बस फर्क इतना है, यहाँ पे कैश और बैंक क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल क्रिएट हो रही है. आई होप यू ऑल हैव गॉट दिस राइट. दिस एंट्री इज पास्ड with the amount paid for external liability. मतलब ये एंट्री हम लाइबिलिटी के बुक वैल्यू से पास नहीं करते, हम उस अमाउंट से पास करते हैं जो हमने पे किया है. राइट, लिखिए इतना गाइस. Guys, before going ahead with journal entries, I am explaining you about realization account also, but you do not write. You will write about realization account once all the journal entries are done. But it is necessary to make you understand about realization account. That is why I am making this. Realization account is a nominal account, means its nature is nominal. Once the business is wound up means when the business is closed down fully, right? It is prepared to record profit and loss on realization of assets and liabilities at one place. जब हम अलग अलग एसेट्स को रियलाइज करते हैं तो हमें प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, राइट. प्रॉफिट कैसे होगा? व्हेन sale value of an asset is more than book value, its book value, correct or not? Or when book value of a liability is more than its discharge value. बुक वैल्यू एक एसेट की 10,000 रुपए है, पर आप उसको बेचने का तो 12,000 रुपए मिले, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट. मतलब सेल वैल्यू एसेट की ज्यादा है बजाय कि इसके बुक वैल्यू के. लाइबिलिटी केस में बुक वैल्यू है एक लाइबिलिटी की 5,000, पर जब उसको पे करने का या डिस्चार्ज करने का तो सिर्फ 4,000 में वो डिस्चार्ज हो गई. यहाँ पे क्या हुआ आपको? 1,000 का प्रॉफिट. लाइबिलिटी की बुक वैल्यू 5,000 है, पर डिस्चार्ज कितने में किया? सिर्फ 4,000 में. 4,000 में ही मान गया वो. तो बुक वैल्यू ज्यादा है, डिस्चार्ज वैल्यू कम है, मतलब क्या हो रहा है आपको? प्रॉफिट हो रहा है. समझ में आ रहा है आप सबको वैल्यू नहीं? और लॉस कब होगा? when book value of an asset is more than its realized value. Realized value मतलब sale value. And when discharge value of an external liability is more than its book value. Correct or not guys? आपने डिस्चार्ज किया एक लाइबिलिटी को 5,000 में, वो लाइबिलिटी जो आपकी बुक्स में 3,000 से दिख रही थी, तो 3,000 की लाइबिलिटी के बदले में आपको कितने पे करने पड़ गए? 5. तो 2,000 का क्या हुआ आपको? लॉस. तो ये प्रॉफिट लॉस जो होगा एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइज करके वो एक ही जगह पे रिकॉर्ड हो, जिससे हमें नेट प्रॉफिट और लॉस अपॉन रियलाइजेशन पता चल सके. इसलिए हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं.
This helps us to know net profit or loss upon realization of all realizable assets and external liabilities. Am I clear? The net profit or loss upon realization is transferred to partners' capital in their profit sharing ratio. जैसे हम रिवॉल्यूशन अकाउंट में करते हैं सेम वैसे, राइट? ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है। ये आपके कॉलम्स बन गए चार। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल रियलाइजेबल एसेट्स। ये जो हमने स्टेप किया था, रिलेशन अकाउंट डेबिट करके हमने सारी एसेट्स को, कौन सी एसेट्स को, रिलायबल एसेट्स को क्रिएट कर दिया। इस एंट्री को जब हम रिलेशन अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हमें सारी की सारी एसेट्स दिखेंगी विद देयर बुक वैल्यूज, राइट? तो रिलेशन अकाउंट के डेबिट में आपको ये सारी एसेट्स दिखने लगेंगी। ये हमारा स्टेप वन हुआ। स्टेप टू में हम क्या करते हैं, सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज और वो प्रोविजन रिजर्व जो हमने किसी एसेट के अगेंस्ट में बनाए उन सबको हम डेबिट करते हैं, क्योंकि उन सबका हमारी बुक्स में क्रेडिट बैलेंस चल रहा होता है, और क्रेडिट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट को। इस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट वी राइट और वी पोस्ट ऑल दीज लायबिलिटीज, करेक्ट? इस तरह से सारी लायबिलिटीज हमारे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ गई। ये हमारा स्टेप टू है। स्टेप थ्री में अब हम क्या, क्योंकि हमने सारी एसेट्स को यहाँ ले लिया है, अब इनको बेचना स्टार्ट करते हैं, रियलाइज करना स्टार्ट करते हैं, राइट?
और बेचने के लिए हमें 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप जिसमें हम वाकई में बेचते हैं मार्केट में, जिससे हमें पैसा मिलता है, तो कैश और बैंक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, रिलेशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। इसको हम पोस्ट करेंगे रिलेशन अकाउंट में, तो रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट। राइट, वो यहाँ पे आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसको हम एक्चुअली प्रेजेंट कैसे करते हैं वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। यहाँ पे असल में हम इसके नीचे लिस्ट बनाते हैं उन एसेट्स की जिनको हमने बेच के पैसे हमको मिले हैं, विद देयर रिस्पेक्टिव अमाउंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल डेटर से मिले 35,000, फिर लैंड एंड बिल्डिंग से मिले 1,25,000। हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग सिर्फ प्रॉफिट या लॉस या फाइनेंशियल पोजीशन जानना नहीं है, बल्कि प्रेजेंटेशन भी है। और इस तरह से हम यहाँ टोटल अमाउंट लिख देंगे, लेट्स से 1,60,000, जो इसका टोटल है। ये आपको आया समझ में, कैसे नहीं आया? राइट। अगर किसी एसेट को हमने किसी लायबिलिटी के बदले में दिया है, तो उसके लिए हम कौन सी एंट्री पास करते हैं? क्या एंट्री पास करते हैं उसके लिए? किसी एसेट को हमने किसी लायबिलिटी के बदले में दे दिया है, कोई एंट्री पास नहीं करते, तो यहाँ नहीं आएगी। राइट। अगर किसी एसेट को कोई पार्टनर लेके गया है, तो ये क्या एंट्री पास करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। गैस एंट्रीज को बिल्कुल अच्छे से समझिएगा और दिमाग में बैठाइएगा। आपको एग्जाम में फटाफट करना पड़ेगा, अगर सोचने का टाइम नहीं रहेगा, वरना आप 50% पेपर भी नहीं कर पाओगे। बहुत ही वाटर टाइट पेपर आता है, ये ध्यान रखना। राइट। तो यहाँ पे इस एंट्री की वजह से, ये जो हमने अभी एंट्री देखी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, क्योंकि पार्टनर कोई एसेट लेके जा रहा है, इसलिए हम उस एसेट को क्या कर रहे हैं, उस कैपिटल को, उस पार्टनर कैपिटल क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। क्योंकि हमें उसका पैसा उसको देने की जरूरत नहीं जितने की एसेट लेके जा रहा है। करेक्ट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाय, उस पार्टनर का नाम लिखते हैं। हेलो। ये तो यहाँ पे गाइस हम क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए पार्टनर स्टॉक लेके जा रहा है, तो हम ब्रैकेट में एसेट का नाम भी लिखेंगे कि कौन सी एसेट लेके जा रहा है वो। क्लियर है गाइस ये बात यहाँ तक? तो ये हमारे बाकी के 2 स्टेप हो गए, किसको, एसेट को रियलाइज करने के। हमने स्टेप नंबर 3 के 3 पॉइंट्स देखे थे। ये स्टेप नंबर 3 के 3 पॉइंट्स हैं, जिसमें से 2 पॉइंट्स की एंट्री होती है और 1 पॉइंट की कोई एंट्री नहीं होती है। तो दोनों पॉइंट की एंट्री मैंने आपको यहाँ पे पोस्ट करके बता दी है। एक जिसमें कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, और दूसरा जिसमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है। क्लियर। इसके बाद हम लाइबिलिटीज का पेमेंट करते हैं, स्टेप नंबर 4। क्योंकि अब हमारे पास यहाँ से पैसा आ गया है, अब पैसा आया तो हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का पेमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो फोर्थ स्टेप का पॉइंट नंबर 1, जहाँ पे हम लाइबिलिटीज के बदले में एग्जैक्टली पेमेंट दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, एंट्री क्या कर रहे हैं, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। We post this entry on the debit side of relation account, we write to cash or bank account. Am I clear? So here we will write to cash or bank account, whatsoever be the case. And here also we make list कि हम किस लाइबिलिटी को कितना पेमेंट कर रहे हैं। जैसे क्रेडिटर्स का मान लीजिए हम पेमेंट कर रहे हैं 45,000, राइट। बैंक लोन का हम पेमेंट कर रहे हैं 1,02,000। तो टोटल जो हमने पेमेंट किया है लाइबिलिटीज का, वो हमारा हो गया 1,47,000। इज इट क्लियर गाइस और नॉट? अगर किसी लाइबिलिटी को हम कोई एसेट दे रहे हैं, तो उसके लिए हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। आज हमने सब स्टेप 2 देखा है, स्टेप 4 का। और अगर किसी लाइबिलिटी को कोई पार्टनर लेके जा रहा है, तो हम उस पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा देंगे, क्योंकि अब हमें उस पार्टनर को पेमेंट करना है। सो नाउ liability of the firm towards that partner has increased, and we debit realization account. While posting this in realization account, on the debit side of realization account we write to partners capital account along with name of the liability that he is undertaking, right? So यहाँ लिखा हमने to पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखा लेट्स से
वाइफ्स लोन, वो अपनी वाइफ का लोन लेके जा रहा है 15,000, तो हमने लिख दिया 15,000। ये बात समझ में आई गाइस आप लोगों को? क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, और सारे नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट साइड जब ज्यादा होता है, डेबिट साइड का टोटल कम होता है, तो हमें क्या होता है? तो हमें क्या होता है? जब क्रेडिट साइड ज्यादा और रिलेशन अकाउंट में डेबिट साइड कम होता है, हमें क्या होता है? किसी भी नॉमिनल अकाउंट में जब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो डेबिट साइड के टोटल से, सो व्हाट इज द आउटकम? प्रॉफिट। व्हेन क्रेडिट साइड इज मोर, पीएनएल ट्रेडिंग अकाउंट आप लोग बनाते थे ना? हाँ, किसी भी अकाउंट में, चाहे रियलाइजेशन हो, चाहे रेवोल्यूशन हो, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट हो, चाहे पीएनएल अकाउंट हो, उन सब में अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम, मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, मतलब हमें लॉस हो रहा है। तो ये कैसे रिकॉर्ड होता जाता है, इसमें आपको बता रहा हूँ, देखिए। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग मान लीजिए हमारी है, बुक वैल्यू 1,05,000 की। राइट, हमने 1,05,000 में ट्रांसफर कर दिया फर्स्ट स्टेप में। लेकिन जब बेचने गए तो उसको कितने मिले? 1,25,000। 1,05,000 की लैंड एंड बिल्डिंग कितने मिले? 1,25,000। डेबिट, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग को देखिए, डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है? क्रेडिट, इसका मतलब हमें 20,000 का अपने आप क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? अब लाइबिलिटी की बात करें, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मान लीजिए हमारे हैं 47,000 के, या चलिए इसको लेते हैं 50,000। ये बुक वैल्यू है क्रिएटर की। लेकिन जब हम पे करने गए तो क्रिएटर्स 45,000 में ही मान गए। होता भी रियल में ऐसे ही, जब किसी को पता चलता है कि बिजनेस बंद हो रहा है, तो जितना निकल सकता है बोले निकाल लो, भूल जाओ बाकी का। कहावत है ना, भागते भूत की लंगोटी सही। वही वाली बात है। तो इस आप देखिए, यहाँ पे क्रिएटर्स को सिर्फ देखिए, डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट ज्यादा है, मतलब क्या हो रहा है हमें? और दिख भी रहा है कि 50,000 के क्रिएटर्स के बदले में हमको कितना पे करना पड़ा? सिर्फ 45। समझ में आ रहा है गाइस ये? बैंक लोन हमारा 1,00,000 का है। पर जब हम एक्चुअली बैंक में पेमेंट करने गए, तो बैंक वाले बोल रहे हैं नहीं, 2,000 रुपये का इंटरेस्ट था जो आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, हमारी बुक्स में रिकॉर्डेड है। तो हमारी बुक्स में कितना दिख रहा है बैंक लोन? 1,00,000, बिकॉज वी फॉरगॉट टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 2,000। बट हाउ मच वी हैड टू पे अल्टीमेटली इज 1,10,000। If you just look at bank loan, which side looks more, debit or credit? Debit. Debit side is 1,02,000 and credit side is 1,00,000. It means there is loss of, and that there would be loss because we are paying more than what we had in our books. Am I clear, guys, or not? One second, guys. इस पार्टनर की वाइफ का लोन 15,000 था। फर्म को लोन कितना दिया था उसकी वाइफ ने? 15। और पार्टनर 15,000 में ही वो लोन लेके गया। अगर सिर्फ हम लोन की बात करें तो इसमें प्रॉफिट और लॉस कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट है। वैसे भी लोन जितने का उतना ही लेके जाना पड़ेगा उसको, मरना थोड़ी करे जाके उसको। राइट और नॉट? ओके, जस्ट जोक्स अपार्ट, बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। राइट? सो लाइबिलिटीज हम सारी यहाँ रिकॉर्ड करते हैं स्टेप 2 में, सारी एसेट्स को हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं बुक वैल्यूज पे, फिर हम एसेट्स को रिकवर करते हैं, मतलब रियलाइज करते हैं उसके, ये दो हमने पॉइंट्स लिखे हैं, और फिर हम लाइबिलिटीज को प्रीपे करते हैं या डिस्चार्ज करते हैं, उसके हमने ये दो पॉइंट्स लिखे हैं। इस तरह से प्रॉफिट और लॉस अपने आप रिकॉर्ड होता रहता है। एट द एंड ऑफ the whole process, we check whether credit side is more than the debit side, and then we determine the profit or loss upon realization, and that profit or loss is transferred to partners' capitals accounts in their PSR. That also we will see here. We will post that here. But first, let me complete the journal entries. ये मैंने आपको इसलिए बताया था just to make you understand how realization account works and how it records profit or loss upon realization of assets and liabilities itself. Right? ठीक है, ये हो गया हमारा 4 स्टेप गए। ये चार सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आपने इतने स्टेप्स भी कर लिए एग्जाम में, जर्नल एंट्रीज या रिलेशन अकाउंट जो भी आपसे पूछा है, तो आपको उस क्वेश्चन के 50-60% मार्क्स मिल जाएंगे। एम आई क्लियर? नाउ फिफ्थ स्टेप। सो आफ्टर these 4 steps, I'm asking you guys, after these 4 steps, which items still have balances in books? सभी पर्सनल है, जैसे कैपिटल का बैलेंस बचा है मैं बुक्स में, राइट, अभी तक। है ना? किन किन चीजों के बैलेंसेस जीरो हो गए गाइस? सारी रिलायजेबल एसेट्स के। रिलायजेबल एसेट्स सबके नहीं, सारे रिलायजेबल एसेट्स के। और भी आते हैं, आते हैं। कहाँ पे नहीं आते हैं? किस एंट्री में?
रिलाइजेशन तो सब जगह है। ये रियलाइजेशन है तो यहाँ पे नहीं आते हैं क्या? यहाँ पे आते हैं, मैं आपको बताता हूँ कहाँ नहीं आते हैं। राइट, यहाँ पे तो आ रहा है, देखिए लिखा है मैंने, गुडविल, ये पेटेंट, दोनों इंटेंजिबल एसेट है। राइट, ये आती हैं। कि मैम ने भी सही बताया, पर उन्होंने क्या बताया मैं आपको भी समझा रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आएगा, इस आप सबको या नहीं आया? तो अभी तक क्या हमारी क्या क्या चीजें हमारी बुक्स में जीरो हो गई हैं? सारी रिलायजेबल एसेट जीरो हो चुकी हैं, और सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज और वो प्रोविजंस और रिजर्व जो हमने किसी एसेट के अगेंस्ट में बनाए वो भी जीरो हो चुके हैं। ये मैंने लिखा भी है यहाँ पे, बिकम जीरो। राइट, तो इसके इनके अलावा अब क्या बचता है हमारी बुक्स में? अब क्या बच रहा है हमारी बुक्स में? कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट, और क्या बच रहा है? इंटरेस्ट एंड कैपिटल कहाँ से आ गया? वो तो कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है। राइट, फिर देखिए, नॉमिनल अकाउंट्स तो वैसे भी अपने आप खत्म हो जाते हैं। राइट, अल्टीमेटली नॉमिनल अकाउंट से पी&एल निकल के आता है, वो प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पार्टनर की कैपिटल में प्लस या माइनस हो जाता है। तो हमको जीरो किसको करना है? एसेट्स और लाइबिलिटीज को, भी नॉमिनल अकाउंट्स अपने आप जीरो हो जाते हैं। करेक्ट और नॉट? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में क्या क्या बच रहा है? एक बच रहा है कैपिटल्स, कैश और बैंक बैलेंस, इसके अलावा क्या बच रहा है? और रिजर्व सारे बच रहे हैं, अभी उनका कुछ भी नहीं हुआ है। वो रिजर्व्स जो किसी एसेट के अगेंस्ट में नहीं बनाए गए हैं, जैसे जनरल रिजर्व, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो भी बच रहे हैं। तो उनका हम वही करेंगे जो हम एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में करते हैं। क्या करते हैं वहां की दृष्टि हम? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में जनरल रिजर्व का और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। अरे क्या? हाँ, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। गाइस प्लीज, ये समझ में आया मैंने क्या कहा? गाइस, रिजर्व्स जो बचे हुए हैं, कौन से? वो रिजर्व जो किसी अगेंस्ट में, एसेट के अगेंस्ट में नहीं बनाए गए हैं, उनको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और क्या बचता है रिजर्व्स के अलावा? सरप्लस तो वही पी&एल हो गया, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पार्टनर्स में। और फिक्टिशियस एसेट्स, पी&एल का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये तीनों आइटम कहाँ दिखते हैं बैलेंस शीट में? एसेट साइड में। इनको हम एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में क्या करते हैं? अभी क्या करते हैं इनको हम? एक मिनट रुको। डेबिट साइड में जो पी&एल का बैलेंस दिख रहा है, मतलब एसेट साइड में जो पी&एल का बैलेंस दिख रहा है, या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दिख रहा है, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर दिख रहा है, इनको हम एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के केस में क्या करते हैं? क्या करते हैं शुभ? हैं? और डेबिट किसको करते हैं? हम्म, सार्थक, मतलब पूछ रहे हो, बता रहे हो? दृष्टि क्या करते हैं इनको? ऋषिका क्या करते हैं इनको? क्या करते हैं मनवीर? हाँ, डेबिट करते हैं। मतलब इन तीनों आइटम्स को हम नलीफाई कर देते हैं बाय डेबिटिंग और डिक्रीजिंग पार्टनर्स कैपिटल्स इन देयर पीएसआर। द सेम थिंग वी डू हियर। वो क्योंकि वो एसेट्स जो है वो रिलायजेबल एसेट्स नहीं है, मार्केट में कुछ नहीं, उनको बेच नहीं सकते हम, तो उनको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, और इन तीनों आइटम्स को जिनके डेबिट बैलेंस चल रहे थे उनको हम क्रेडिट कर देते हैं। चाहे वो पी&एल अकाउंट हो, चाहे एडवर्टीजमेंट हो, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या कोई और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो। क्लियर है गाइस ये बात? सबसे पूछ रहा हूँ, ये क्लियर है? पक्का? और किस चीज का बैलेंस बचता है? इन विच अदर अकाउंट वी हैव स्टिल बैलेंसेस आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स? बोलिए। करंट अकाउंट, अगर पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं तो वो बचता है, वो कहाँ जाएंगे? वो पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं हम। क्लियर? हाँ, जो भी है, पर पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके अलावा क्या बैलेंस बचता है अभी? और दो बैलेंस बच रहे हैं। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसका बैलेंस बच रहा है लोन अकाउंट का, क्योंकि पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया उसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं मानते। हाँ, पार्टनर की वाइफ ने या पार्टनर के ब्रदर ने लोन दिया है, जो हमने लिखा है, तो हम उसको एक्सटर्नल लायबिलिटी मानते हैं। That is also liability, but that is not considered as an external liability because it's a partner himself.
नहीं मतलब अगर पार्टनर रेंट देता तो वो चार्ज लगे प्रॉफिट। हाँ, रेंट इंटरेस्ट ऑन लोन तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से। तो फिर ये लोन क्यों नहीं है? लोन लोन इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट जिसको चार्ज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से एप्रोप्रिएट प्रॉफिट माना जाए। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से एप्रोप्रिएट प्रॉफिट हम क्यों समझते हैं ऐसा, क्यों हम ये फिक्स करते हैं कि हम उसको पीएनएल में दिखाएं कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, करेक्ट? पार्टनर्स लोन पीएनएल एप्रोप्रिएशन या पीएनएल में आता है क्या? नहीं, वो तो लोन, वो तो क्या आपका पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट कभी भी नहीं आते पीएनएल में और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। ऐसा लगता है अकाउंट है ना, जब आते हो यहाँ सीखने के लिए तो सब कुछ पुराना, सब कुछ। अच्छा तो आज ही बढ़ाया मामला है वो और इसको पढ़ रही है। तो गाइस, पार्टनर ने अगर किसी किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो हमको उसको भी रीपे करना है। किसके बाद? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का पेमेंट के इमीडिएटली बाद। उसके बाद पार्टनर की कैपिटल पे होगी। पार्टनर की कैपिटल सबसे लास्ट में पे की जाती है, राइट? और अगर किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है, मतलब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो उसका लोन का बैलेंस उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। डेबिट कर दी। ये समझ में आया आप सबको, वैसे नहीं आया? इतनी चीजें अभी बच रही हैं हमारी बुक्स में, लेकिन सबसे पहले हम रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स की वापस बात कर रहे हैं, जिसके स्टेप्स हमने देखे हैं यहाँ, तीन सब स्टेप्स। वो क्या बात कर रहे हैं? वो अभी जो तन्मय बोल रहा था वो बात कर रहे हैं। आईएससी और सीबीएसई वालों को ट्रीटमेंट अलग अलग है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ। आई एक्सप्लेन यू दिस फर्स्ट एंड देन आई विल राइट अबाउट इट। समटाइम्स इन क्वेश्चंस, फॉर सम एसेट्स रियलाइज्ड वैल्यू इज नॉट गिवन। आपको एसेट्स दी होती हैं, एसेट्स आर गिवन इन बैलेंस शीट और अदरवाइज, बट हाउ मच दे आर रियलाइजिंग अपॉन डिसोल्यूशन, दैट इज नॉट गिवन, right? How much you recovered from land and building whose book value is 1 lakh is not given to you in the question. If it is so, then the tangible assets are considered to realize their book value only. Tangible assets are considered to realize their book values. So land and building book value has is rupees 1 lakh, and nothing is given in the question as how much we realized from land and building. So we will assume that we realized its book value, that is 1 lakh only. Am I clear? But in case of intangible assets, it is not so for CBSE students. If there is no realized value given of intangible assets, right, then you will assume that no realization happened out of that asset, means that asset did not realize anything. Which asset? Intangible asset. But with tangible asset, you will consider, you will assume that book value was realized. Am I clear? Have you understood this, guys? For IC students, whether it is tangible or intangible, if realized value is not given, then we assume that nothing was realized from that asset, whether it is tangible or intangible. Is it clear to all? I hope you have got this, right? That is what I am writing here. So, guys, how much you have noted down? Have you all noted down till point number 4?
Note down this much, guys, and then we go ahead with point number 5. Fifth point is for dissolution and realization expenses. Dissolution expenses are those which a firm has to incur legally to dissolve the firm. Whenever you are about to close down your business, you have to give a newspaper a notice mentioning that on this and this day, on this particular day of future, you are going to close down the business. And in case anyone has any claim on your business, they should submit the claim by this and this date only. After that, claims would not be entertained at all. That kind of public notice you have to give legally, right? For all such expenses are known as dissolution expenses. Am I clear? Have you got this, guys? Realization expenses, on the other hand, are those which are incurred to realize assets. Because selling assets is also not easy. You have land and building, plant and machinery, furniture, stock. You also have to recover money from debtors, from investments, and all these things require money, means require expenses, right? For example, to sell your all fixed assets, you either have to auction them or have to give advertisement in newspaper or appoint an agent for it, right? All these expenses together are recorded in books of accounts as realization expenses. And for that, we debit realization account because now no other account is existing in our books because we are actually in the process of closing down all the accounts, right? When the firm incurs these expenses and pays them, then we debit realization account and credit cash or bank account. With the amount of expenses paid. There may be a case, guys, do not try to understand this first. There may be a case that a partner offers to other partners that he himself will realize all the assets. Instead of firm putting in any efforts to realize assets, he will do this on behalf of the firm, for which he will charge a commission at a certain rate on the amount that he recovered, on the amount that he realized. Am I clear, guys, or not? So when a partner undertakes to realize some or all assets for a commission, then we debit realization account because ultimately this commission that the firm has to pay to that partner is firm's expense. And for that realization account should be debited क्योंकि firm का खर्चा है. But the firm does not need to pay this commission to the partner in cash. Rather, that can be adjusted in partner's capital, and that is why we create partner's capital account for the amount of commission. Am I clear, guys, or not? Clear all. Now, the partner who undertakes this responsibility of selling some or all of the assets of the business, Rishika, write it later, please.
The partner who undertakes to sell or realize some or all of the assets of the business, he also needs to incur some expenses from his pocket to realize the assets. वो जादूगर थोड़ी है, उसको भी तो खर्चा करना पड़ेगा। और जो उसने जिम्मेदारी दी कि फर्म ये काम ना करे, मैं खुद कर दूंगा एक कमीशन के बदले में, तो उसको तो खर्चा करना पड़ेगा अपनी जेब से। उसको भी एक पेपर में एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा या किसी एजेंट को पकड़ना पड़ेगा। या अगर वो खुद भी जाके एक एक एसेट को बेचता है तो भी उसमें उसका कन्वेंस का खर्चा होगा, पेट्रोल लगेगा उसके गाड़ी का, या कन्वेंस का पैसा लगेगा, राइट। वो एक्सपेंस अगर उसके पास नहीं है पे करने के लिए, राइट, अगर वो खुद पे करता है और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी है, तो उसकी आपको कोई अकाउंटिंग या रिकॉर्डिंग नहीं करनी फर्म की बुक्स में, क्योंकि वो उसका पर्सनल खर्चा है। क्योंकि उसने बोला था कि मैं कमीशन के लिए काम करूंगा, तो उसका जो खर्चा है वो खुद बियर करे। व्हाई फर्म शुड पे इट, एंड व्हाई शुड फर्म टेक इट ऑन इट्स ओन हेड, राइट। लेकिन अगर वो पैसा उसके पास देने के लिए नहीं है, वो फर्म से कहता है कि मैं ये रिलेशन का खर्चा कर रहा हूँ, ऑन माई बिहाफ यू प्लीज पे इट, then we debit partner's capital account and credit cash or bank account. Why? Because the money that we are paying now is not our expense, but it is the expense of that partner. On his request only we are paying it. समझ में आया आप लोगों को? सबको या नहीं आया? What this? I hope guys you all have understood this. Yes or no? With this guys, our this step is also over. You can start noting it down now. You already have noted down this much, right? ताकि इसकी हरकतें अच्छी नहीं है, लोगों का सामान For repayment of loan given by a partner to the firm. इसके लिए guys हम पार्टनर्स लोन अकाउंट को डेबिट करते हैं। अभी लिखिए मत गए प्लीज। और कैश और बैंक अकाउंट को क्रिएट करते हैं, राइट। तन में ध्यान से सुनना। पार्टनर का लोन है 10,000, लेकिन पेमेंट करते समय हमें पता चला कि हमको उसको 1,000 रुपये ज्यादा देने थे। इंटरेस्ट का था जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? राइट, रिलेशन अकाउंट हम डेबिट करेंगे। ये समझ में आएगा आप सबको या नहीं आया? So partners loan account will be debited with balance of loan account. अगर लोन बैलेंस से हमें उसको ज्यादा पेमेंट करना पड़ा तो वो हमारा लॉस है। उसके लिए हम रिलायजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर नहीं करना पड़ा तो रिलायजेशन अकाउंट यहाँ पे नहीं आएगा। टू कैश और बैंक अकाउंट।
with the paid amount. I hope you all have got this, guys. Right? इसके साथ हमें जो जो पेमेंट करने थे वो सब पेमेंट हमने कर दी। एक्सटर्नल लाइट्स का पेमेंट कर दिया, पार्टनर की लोन का पेमेंट कर दिया। अब क्या बचता है? सिर्फ पार्टनर की कैपिटल, और कुछ भी नहीं बचता पेमेंट करने के लिए। और उसके पहले हमें बहुत सारी ट्रांसफर एंट्रीज करनी, जिसकी भी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। ये समझ में आ रही है गाइस और नॉट? अगर किसी पार्टनर को फर्म ने लोन दिया है तो उस पार्टनर का लोन का क्या बैलेंस होगा हमारी बुक्स में? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट, वो हमारी एसेट होगा। राइट? तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट, और उस पार्टनर की कैपिटल को हम कर देंगे कम, मतलब डेबिट। So partners capital account debit to partners loan account means if a partner has taken loan from the firm, that loan would not be recovered from him in cash. But if partner has given loan to the firm, then that would be paid in cash. Do not forget this, guys. Right? अगर किसी पार्टनर के करंट अकाउंट में बैलेंस है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? राइट। गाइस प्लीज। अगर पार्टनर के करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, करंट अकाउंट को, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो उससे करंट अकाउंट का बैलेंस जो डेबिट चल रहा था वो हमें बुक्स में क्या हो गया? जीरो। और अगर किसी पार्टनर के करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस चल रहा है तो हम पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और उसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। For reserves and surplus, we will debit reserves account, ये हमारा सरप्लस आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको पता है इस पीएनएल अकाउंट में जब क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको हम सरप्लस कहते हैं, जो लाइबिलिटी साइड में दिखता है तो उसको हमने डेबिट कर दिया। टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ये हम एडमिशन में भी करते थे सेम ऐसे ही इन पीएसआर। रिजर्व्स को हमने डेबिट कर दिया, रिजर्व सरप्लस को, पार्टनर्स की कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि इन रिजर्व्स का हमारे बुक्स में क्रेडिट बैलेंस चल रहा था। राइट? एंड फॉर fictitious assets we debit all partners capital accounts and credit, हाँ, डेबिट बैलेंस है पीएनएल अकाउंट का, वो भी fictitious asset है। राइट?
आई होप गाइस यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। ये करने के बाद हमारे पास अब जो बैलेंस बच रहे हैं सिर्फ दो अकाउंट में बच रहे हैं, एक पार्टनर्स के कैपिटल में और दूसरा कैश और बैंक बैलेंस में। राइट। पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस चल रहा है। राइट। और कैश और बैंक बैलेंस में डेबिट बैलेंस चल रहा है। जितना पार्टनर्स के कैपिटल में कलेक्टिव क्रेडिट बैलेंस चल रहा है गाइस, उतना ही कैश या बैंक का डेबिट बैलेंस होना चाहिए इतने स्टेप्स करने के बाद। अगर नहीं है मतलब आपने कहीं मिस्टेक की है, अगर है इसका मतलब सब कुछ सही जा रहा है। ये समझ में आया आप लोगों को या नहीं आया? ओके, एक एंट्री मैंने इसमें और मिस कर दी है गाइस, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन अकाउंट इन्वॉल्व था। इसके बाद जो एंट्री हमारी आएगी वो है टू क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट। अगर रिलेशन अकाउंट को क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट कम है, तो हमें रिलेशन अकाउंट को डेबिट करने की जरूरत पड़ेगी ताकि उसके दोनों साइड इक्वल हो जाएं। और डेबिट करना मतलब प्रॉफिट हो रहा है हमें। इसके लिए हम सारे पार्टनर्स की कैपिटल्स को क्रेडिट कर देंगे। तो दिस एंट्री वी पास विद realization profit, and this goes in partners capitals in their PSR। ये समझ में आ रहा है गाइस? और अगर डेबिट साइड रिलेशन का ज्यादा क्रेडिट साइड कम है, इसका मतलब हमें लॉस है। और रिलेशन अकाउंट को क्लोज करने के लिए हमें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि उसका डेबिट साइड ज्यादा था, क्रेडिट कम था। जिसके लिए हम सारे पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे इन PSR विद रियलाइजेशन लॉस। ये समझ में आ रहा है आप सबको वैसे नहीं आ रहा है? हम्म। नॉमिनल भी थोड़ी देर पहले आपके आने के थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने। इसलिए कहा था कि आप लिखते जाओ, ये लिखा है। सॉरी, ये लिखा है। वो भी नॉमिनल है, राइट। तो गाइस ये हमारा स्टेप 11 हुआ। अभी रुक जाइए, एक साथ ही लिखिए, सब बस खत्म ही हो रहा है गाइस। तो लास्ट में हमारे पास क्या बच रहा है गाइस, ये सब कुछ करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस और कैश और बैंक अकाउंट के बैलेंस। राइट। ऐसा भी होता है कई बार कि किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, आ जाता है, हाउस ऑफ क्रेडिट बैलेंस, लेकिन रियलाइजेशन लॉस, फिक्टिशियस एसेट्स की वजह से उसकी कैपिटल डेबिट होती चली गई। कोई एसेट भी लेके गया, उसकी वजह से भी उसकी कैपिटल डेबिट हो गई। उसमें अल्टीमेटली उसकी कैपिटल में डेबिट बैलेंस आ गई। अगर ऐसा है तो फिर जितना उसका डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है, उतना पैसा फर्म को उससे लेना है, तो रिकवर किया जाता है। क्वेश्चन में बोला हो या नहीं बोला हो, यू हैव टू रिकवर दैट मनी फ्रॉम दैट पार्टनर। एम आई क्लियर? जो भी उसके कैपिटल का डेबिट बैलेंस उतने से हम कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, उतना उससे कैश या बैंक मंगवा लेंगे, मतलब पैसा मंगवा लेंगे। राइट।
जितना कलेक्टिव बैलेंस पार्टनर्स की कैपिटल में, कलेक्टिव ट्रेड बैलेंस चल रहा है पार्टनर्स कैपिटल में, ऊपर की सारी इंक्रीज करने के बाद उतना ही हमारे पास डेबिट बैलेंस होना चाहिए कैश या बैंक का। ये चेक पॉइंट है इस डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस का, आप अपने आप चेक कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है, राइट। और उसके लिए फिर हम पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे उनके रेस्पेक्टिव ट्रेड बैलेंस से और क्रेडिट कर देंगे कैश और बैंक को। इस तरह से हमारे बुक्स में कैपिटल और बैंक का कैश या बैंक का बैलेंस भी जीरो हो जाएगा, राइट। So this is how guys we are done with all the 13 steps। सारी एंट्रीज हमारी हो गई हैं। कहाँ से लिखना है आप लोगों को? लिखिए यहाँ से गाइस। दिस इज लोन गाइस। सेटलमेंट नहीं, ट्रांसफर ही होगा। सेटलमेंट कैपिटल का होगा बाद में। और वो भी सेटलमेंट नहीं होगा, जितना पैसा बचा होगा उतना ही मिलेगा उनको, भले ही कैपिटल का बैलेंस कुछ भी हो। And guys, note it down 8 and 9 also. All. Done, everyone, with 11th step, Sarthak.
Guys, tomorrow I will ask you journal entries what we have seen today. ठीक है Right? If you do not answer, you will be sitting here and will be writing it 20 times. सर नर्सरी में नहीं है कल कल तक नहीं है जुलाई में निकाल लेंगे मैं सर की रोज मिलता भी मैं अच्छा नहीं है नहीं होगा चलते ही वो नहीं होगा जिंदगी मंदिर के वहाँ अच्छा लड़की मंदिर के बाहर में Guys, once you are done with this, start noting down this about realization account. सर इनकी चोरी पुस्तक ही नहीं ये वाइवा में तो पता चलेगा. है तो आएगा तो नहीं पूछ रहे पहली बार हम देखेंगे ना हम और मैं ध्यान से बैठ सार हो रहा हूँ ध्यान से बैठ कर सार करे और बन गया एक अभी अठारह से इंग्लिश अरे लिखा कि नहीं आप 13 स्टेप तक? लिख दिया पक्का? एक सौ ये लिखो रिलेशन अकाउंट के बारे में. प्लीज लिखो तत्पर में फास्ट. कर चुके हैं सर थोड़ा टेस्ट लेना कौन सा टेस्ट Yeah. लिखो लिखो फटाफट तन्मय प्लीज. Here guys, you better write when. Look at here all. In the second line, instead of once, you write when. Here off will not come guys. This off. After the brackets and loss आएगा.
सारे सब जिसका होता है, सबका इंग्लिश, हिंदी। Then guys all noted on this match. Done all, everyone. Rishti, Rishika. In the next 2 3 classes, guys, this chapter would be over. Resolution. And then we will start with cash flow statement, the last chapter. And then we will revise the things again right from the beginning. And may please be quiet. ये हो गया आप लोगों का, आपने क्लास तो अटेंड करते नहीं हो आप। सो गाइस इसके बाद जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट है, पर वो आप कल लिखिएगा बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट दैट रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। 5 मिनट का ब्रेक है गाइस, आप लोग शेयर्स के क्वेश्चंस देखिए, आपका वाकई में टेस्ट है, मैं आपको ओरली एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सबको वही सेम क्वेश्चन करना है। अभी देखिए, हाँ शेयर्स देखिए, शेयर्स गाइस क्वेश्चंस in 5 minutes. नंबर 10 लेके जाओगे डॉक्टर बीएससी क्लास भी हमारी, राइट।
वो तो बस एक बार आ रहे तो एक पीढ़ी शेयर ऐसी हाँ नहीं है मतलब ये थोड़ा अरे बड़कर अरे हमने आकर चलने अरे चल चल के अपन अरे घूमेगा अरे ना अरे कुछ खा के आते यार वो नहीं समझ पाए और शायद उसकी नहीं हॉस्पिटल में एंट्री आता है इसलिए ये शिक्षण की क्या होती है तो देखो ऐसा नहीं होगा शेयर माता रील्सों की एंट्री क्या आती हाँ वही होती ना शेयर हम लोग शेयर हॉस्पिटल हाँ बैंक शेयर हॉस्पिटल शेयर टू शेयर कैपिटल हाँ और क्या बात है यार छोड़ यार मतलब यार तुझे पकड़ जाने की बोल तो ये कर पता ही पूरा पड़ गया है और क्या सब है तब हम खाई की हुई है अभी आ रही oh पर उनके लगे take one picture तो शाम यार क्या है भाई क्या है तो शरीर में आता है बड़ा गया था कहीं ज्यादा पढ़ लेंगे तो तो मैं कॉपी में है नहीं श्योर कोई हमारा जो है आपको हाँ पास में है नहीं एक में मानना है तो पास में हाँ मेरा मतलब क्या होगा ऊपर ऐसे हम बैठो इधर सारे काम कर रहे थे मुझको और ये याद है और वो जो हाँ सही है मेरे पास ये तो हमारे इसके आइडिया सिक्का और आइडिया क्या कर रहा है तन्मय? कॉफी लेना पड़ेगी बाहर पाँच लीटर मेरी स्टार्ट तो पड़ेगी मेरी भी कौन सी कहाँ पी कॉफी बना खाओ कॉफी खाने का देखो सर कॉफी कि वो टाइम से निकाले ना दे रहे हैं यार ये सब क्या टाइम नहीं है अकाउंट की छुट्टी में 5 रुपए अकाउंट पे 5 रुपए छुट्टी है ज्यादा नहीं हाँ ये जो मैं बोल रहा हूँ तुमने को मेरे को नहीं बोलाएगा काफी था मल्टी कैपिटल सर आप एक्स्ट्रा पढ़ के आता है सर डॉक्टर था फिर आप बोल के छुट्टी भी कर सकते हो पूरे टाइम ऐसे मत देना जैसे कुछ मत देना और यहाँ से आए वो बता दे तुमसे और भी क्या कर सकते
अरे फ्लोरिडा बोल के आता तो पहले में रहेगा 12,000 वाले को बोल रहा है सही बोल रहा है 8,000 12,000 इशू करे थे और 20,000 सब्सक्राइब हुआ है रेशो कार्ड में 10,000 की महंगाई होगी ना लेकिन बाहर आ गया एक हजार वाला तो मैं बहुत छोड़ कर नहीं बढ़ रहा हूँ अरे मीठा बैठा सारी गलत बात अगर आपने एक बात ले लिया सीधे बैठो भाई ऊपर जाएगा चलना भाई चलना प्लीज ये बात अगर आपने मीटिंग में वीडियो वीडियो को लिख दिया और सर आपने उसके काम नहीं किया अरे वो पहला पहले सर खाने में हमारी जैसे नहीं करेगा इतना मूल्य तो वीडियो देख ही ना सर साइड ऑफ यू आल्सो मेडिकल स्टूडेंट you didn't say fast Basically, see that by explaining the when the path direct where 21st right? I went I was little because very good. This is a piece in the money. वो अपना वाला दर्द ना एक्स्ट्रा बैकअप के लिए पहली बंद हो गया कितना हो गया Guys, you have 35 minutes only, huh? Now, from now. कल एंड हो जाओ जा सकते हैं हाँ जा सकते हैं सर तन्मय प्लीज डू इट